So what we are going to do in today's class, so far we know what is entity, and we were just creating simple fields like ID, name, and we already know that ID is of int type and name is of string type, right? No issue about that. What about if we need to, entity means it could be any object, so let's create student class. Okay, so ID is fine, name is fine. What about if there's a field which says subjects? So Shubham, what do you think? What would be the type of the subjects? सर इसका स्ट्रिंग ही होना चाहिए। सब्जेक्ट्स कह रहा हूँ, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे ना फिर। देन स्ट्रिंग में कैसे करोगे? मेरे पास जावा और अदर लैंग्वेजेस हैं पढ़ने के लिए, देन हाउ यू आर गोइंग टू सपोर्ट दैट? और इफ देयर इज अ सिंपल सर स्ट्रिंग, लिस्ट यस, कलेक्शन, राइट? Collection solution. सिलेक्शन। यस सर। Okay, so let's create this. Okay, we are going to create a student class, try to create these fields, and we'll try to save them in database, and we will see what's happened. Okay, so close all. So again, let's revise this. So first step is we have to create a class. So copy this, right click on the tester, sorry, not tester, entity, right click, new class, student, then time to create fields, private int id, then string name, and next we'll create subjects. So subject is of collection type, so I'll pick any of it. Let's pick list type, and definitely this generic will be string. Subjects, done. Always give plural subjects, not just subject, and we'll pick it from util package. Let's generate scatter setters. Okay, done. So this is just a Pojo class, plain old Java object, Pojo. Now we need to convert this Pojo to a entity. So this thing will do entity, and I want to change the table name. So Hibernate won't take a default name here. So name field or attribute, and I'll just say student underscore TV. Done. And definitely I need a primary key. सर मेरे ना वो जो मैं एंटिटी वो बना रहा था ना, तो टेबल वाले में सर मेरे कुछ और वो कमांड ले रहा था, मतलब ऐसे अपने एज इट इज अभी दिखाया ना, हम्म। तो वो आपने चेक जेनरिक करके कुछ ले रहा था। चेक किया आपने कि यहाँ पर टाइप कहाँ से इंपोर्ट किया था उसको? सर बाद बाद में चल गया था, सर्वर परसिस्टेंस से चलाया था। अच्छा। और मतलब जो भी उसने मतलब खुद वो उसने सजेस्ट किया था, तो मैंने वो किया तो चल गया उसके बाद। ओके ओके, ठीक है, चल गया था ना? ओके फाइन। हाँ हाँ सर। फाइन, सो वी हैव एंटिटी क्लास। डिस्टरबेंस है मेरे साइड से, बता देना, काफ़ी इस तरह भी बहुत सारे बम फट रहे हैं। कोई नहीं सर, ठीक है, आपकी तो सही आ रही है आवाज। चलो ठीक है। Okay, so we have a student class ready, and we have already made it like a entity class. Next, we need to map it in configuration file. So Hibernate configuration file goes here. Let's copy this. Everything's fine. Package name is good. We just need to change or give name student. Okay, this is done. Now what? This was the second step. It is also mapped. Next is tester file. So let's create. I'll just copy the previous class. I'll call this student tester. Okay, there it is, and let's keep it empty. So we will do this from scratch. See, this is just first or second class, that's why I'm removing everything. Once we are comfortable, I'll just copy paste. Okay, so first step is always create session factory, and how we get that, it's like a getting a connection of MySQL when we were doing database API. So that class, this class gives us session factory object. So I'll say hibernate utils dot get session factory. Session factory always from Hibernate, don't pick from anything else, just classes from Hibernate and notation from JPA. Session factory done. Then after we need to acquire a session object. So session factory dot open session. This gives us session object, session from Hibernate package. Again done. Once we have a session, let's try to begin this transaction. Begin transaction done. So these three steps are mandatory. You have to do this when you are working with standalone application of Hibernate
कोई और फ्रेमवर्क या कोई और सपोर्ट नहीं है, जस्ट हाइबरनेट है। एंड हाइबरनेट डेफिनेटली कोर जावा में होगा, तो कोर जावा प्लस हाइबरनेट चल रहा होगा, तो वहाँ पे आपको बार बार सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। दिस इज अनदर वे टू क्रिएट दिस इंस्टेंस। Okay, we have that. Now we have a student entity and we need to create its instance to save in database. So let's create instance of student first. Student, done. Then I'll say so student dot set id 1. Remember we have used auto generator. Do you know that? Yes, sir. Okay, so let's use that as well. So at generated value, and then we'll pick strategy, and strategy will be identity, this one. So this will generate our primary keys automatically. Okay, so that means I don't need to give the ID. Let's remove it, and I'll say set name, let's say Shubham. And now we need one more object, student dot set hobby subject, and it needs collection. So before the student, let's create collection of subjects. So, and that they are of string type. So let's say string of string subjects. Always name your variables, you know, some with some meaning. And then I'll say array list as an implementer. This is a proper way of creating collection. Okay, if you have noticed, left side is the just a class. Oh, sorry, just an interface. It just says, okay, this is the implementation. Oh, sorry, this is the implementation for this type. And then we can go for subjects dot add. This is a collection. We can do always add. So let's add some collections like Java. Let's say CSS, HTML, Angular. Let's add one more, DevOps. Okay, so we have 5 subjects there. We can, we already have 5 subjects here, so that's good. So this will have 5 objects from here. What's next? Once we have object in Hibernate, what we do? We need to save them. This is just to instantiate and initialize all the fields. So we can have a record in the table. Not an empty table, we have some record. So these will be a part of record. Okay, so again session will help us. Session dot save, and just pass student, because that's the only object we have, student. This is just a sub object, goes inside student. So this is the main object, student. So you just need to save student only. So this is done, and then make sure you're also flushing it. Sometime it gets stuck, so flush, and then you can go for session dot close and session factory dot close. Done. That's it. So this is something similar. The only thing we have added new, a collection. Okay, let's see the what you call say implementation, or what will happen once we run this code. So run as application. Okay, it says could not determine the type. Okay, I just want to show you this error. So let's discuss what just happened here. Next paint. So this is what we are getting. Okay, could not determine the type. What's the type here? Util list. Which table? Student table. What's the column? Subjects. So Hibernate got confused. It says, okay, you have 3 fields in your entity class. One is int, that's ID, that's fine. One is name, which is of string type, that's fine. Next, third one is subjects. And what is that? List. Hibernate got confused about this part. Okay, Hibernate does not know what is list of string type. Okay, Shubham? These are some primitive types or object types. Hibernate knows this. This is something different which Hibernate doesn't understand. So you have to make understand that this is just a collection of objects. यहाँ पे हुआ क्या है? Hibernate को पता नहीं चल रहा है कि int है, string है, that is fine, but list कुछ नया है Hibernate के लिए. So we have to tell this explicitly that this is actually a collection type. Okay? So कैसे होगा? Again we need to go for one more annotation. What you have to do? Just जो भी हम चीज पर जिस किसी भी चीज पर कोई स्पेशल प्रॉपर्टी या स्पेशल फीचर ऐड करना चाहते हैं, हमेशा उसके टॉप पे एनोटेशन लगाते हैं. जैसे अगर टॉप, इफ यू टॉक अबाउट एनी क्लास, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लास इज एक्चुअली एंटिटी. हाउ डू वी नो? बिकॉज हमने जस्ट क्लास के ऊपर एक एंटिटी लगाई है, एंटिटी एनोटेशन.
this tells us Hibernate that this is not just a regular Pojo class, it's an entity class. यहाँ पर एक यहाँ पर एक ID field था, we have marked with @id. So इससे क्या हो रहा है, Hibernate को पता चल रहा है कि this field is actually a primary key. अगर ये नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सी फील्ड प्राइमरी की, और हाइब्रिड को एक्सप्लिसिटली टेल वी आर टेलिंग इट दैट दिस इज अ प्राइमरी की. स्ट्रिंग नेम था, जरूरत नहीं पड़ी. अब यहाँ पे कलेक्शन आ गया, हाइब्रिड अगेन गॉट कंफ्यूज कि व्हाट इज दैट, आई डोंट नो व्हाट इज लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. सो वी हैव टू टेल दिस एक्सप्लिसिटली दैट दिस इज अ कलेक्शन, सो यू हैव टू सेल कलेक्शन टाइप. कलेक्शन टाइप नहीं नहीं, कुछ और होता है, मैं भूल गया. जस्ट सेकंड, लेट मी चेक. कलेक्शन, कुछ एलिमेंट कलेक्शन, या दिस वन. सो दिस एनोटेशन टेल्स कि जो नेक्स्ट फील्ड है subjects, this is actually of collection type. That's it. Once you use this annotation at top of your field, Hibernate understand, okay, so ये int है, ये string है, और ये collection है. जैसे ही इसको collection type मिलेगा, this will do something strange. Okay, let's clear this out and let's run the code again from student tester. So right click, run as application. Now you will see something weird in the output. Okay, so can you see, Shubham, we have two tables now. One is for student subjects, one for student AB, right? ऐसा क्यों हुआ? We will see in a minute, but our solution worked out. We just told this Hibernate framework or service that we are using this field as a element collection type, and because of this, it will create this kind of structure. Shubham, clear? यस सर. Okay, अब मैं फटाफट पहले इसको पेस्ट कर देता हूँ वहाँ पर. And then configuration में इसकी mapping करी, that we needed. Okay, this is also done. Now let's see database. So how many tables we got? Two tables. एक है स्टूडेंट टीवी जो एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम कि एक और नया टेबल बनेगा. ओके, देखते हैं इसमें क्या है. सो राइट क्लिक, रिफ्रेश ऑल. तो पहले देखते हैं स्टूडेंट टेबल. तो राइट क्लिक दिस एंड या दैट्स फाइन है ना, दो फील्ड्स. ओके, दो फील्ड है इसमें, आईडी और नेम. वो कहाँ गया? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट गया इस टेबल में. अब देखो यहाँ पर शुभम क्या हुआ. So Hibernate automatically creates second table and maps all the collection in that table. How do we know that these subjects belongs to student? Because of this ID, right? ये ID जो 1 है, ये इस student से mapped है. Okay, so that's how Hibernate maps, and we can easily fetch the records. So let's take this thing, copy, then paint, done. And what's the after effect कि Hibernate ने पहले एक टेबल क्रिएट किया, स्टूडेंट सब्जेक्ट नहीं, जस्ट स्टूडेंट टेबल, देन एक टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट सब्जेक्ट्स. ओके, इसको हम मूव करते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं, एंड देन वी हैव दिस कोड. टेस्टेड कोड्स दिखाना पड़ेगा कि फील्ड कहाँ से हमने सेव करी. दीज आर द फील्ड्स वी आर पासिंग इन आवर कोड. Okay, so all these fields of parameters, whatever we have initialized, they become part of new table subjects column में out हो गया. और जो हमने पास करे नेम और आईडी वगैरह, वो सब इसमें गए. And this is our console output. We got two tables, student subjects and student table. Okay, this is done.
third image. Show any doubt, question, anything not clear, want to discuss again? नहीं सर, क्लियर है अभी तक तो ये। क्लियर है। ठीक है, तो वैसे एनोटेशन है, राइट? एनोटेशन यूज कर लोगे तो यस सर। जैसे जीएसपी में हमें टैग्स याद रखने हैं, ऐसे ही हाइबरनेट में हमें एनोटेशन याद करनी है। जितने एनोटेशन याद होंगे उतने जल्दी आपको हाइबरनेट समझ आना शुरू हो जाएगा। और इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, जितना कोड लिखोगे, जितने एनोटेशन खुद से यूज करोगे, तो उतना याद होता चल जाएगा। सो दैट्स इट। और हमने यहाँ पे एक्चुअली इम्प्लीमेंट क्या करा है, हमने सीखा है हाउ टू सेव कलेक्शन इन हाइबरनेट। अगर इनिशियली में टॉपिक बोलता कि हम कलेक्शन सेव करने वाले हैं, तो लगता है बड़ा चीज कि अरे हम वी आर गोइंग टू सेव अ कलेक्शन, वो कैसे पॉसिबल है? सो दिस इज व्हाट वी कॉल storing collection in Hibernate. Storing. Okay, so we are done with that as well. अब let's do some basic CRUD operations. Okay, CRUD operation करते हैं और wrap up करते हैं। अब हमारे पास रिकॉर्ड है, एक काम करते हैं, एक रिकॉर्ड एंट्री कर लेते हैं, ठीक है? तो सब्जेक्ट, लेट्स कीप सब्जेक्ट सेम, और मैं एक और स्टूडेंट बना रहा हूँ। यहाँ पे बस एक नाम चेंज कर देता हूँ, लेट कॉल दिस पवन। ओके, सो दो स्टूडेंट हो गए, मतलब यहाँ तो नहीं, डेटाबेस से तो हो जाएंगे। अब व्हाट डू यू थिंक शुभम, विल दिस ट्रिगर अगेन दिस क्रिएट क्वेरी? क्रिएट फिर से चलाएगा क्या, टेबल क्रिएट करेगा क्या? सर मेरे ख्याल से उसी में चेंज कर देगा। कैसे होगा ये, हाउ इट्स पॉसिबल कि आप वापस कर रहे हो? तो टेक्निकली लास्ट 3 दिन जो हमने हाइबरनेट में स्पेंड करे हैं, उसके अकॉर्डिंग जब भी हम ये सेशन डॉट सेव चलाते हैं तो एक नया टेबल क्रिएट कर देता है, करेक्ट? अभी तक तो ये सर हुआ है। हम, हाँ, हाँ सर। पर हमने कभी ऐसा तो नहीं सर, किया कि एक बार कोड हमने एग्जीक्यूट कर दिया, वापस उस कोड में चेंज करे, वापस कोड को चलाया हो, हाँ, ये नहीं किया सर है हमने। ना? तो ये इसलिए खुद से करना होता है। चलो ठीक है। तो अब अगर मैं इस कोड को वापस चलाऊं तो क्या होगा? क्या वो वापस टेबल क्रिएट करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, है ना? रीजन तो होगा कहीं तो कोई। करेगा तो अच्छी बात है, अब तक तो वही चल रहा था, तो वही हो गया, वापस है नया टेबल क्रिएट करेगा और नई एंट्रीज डाल देगा। तो पुरानी एंट्रीज का क्या होगा फिर, है ना? क्वेश्चन है बहुत सारे। सो ऑल दैट थिंग एक्चुअली हैंडल्ड इनसाइड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, अपडेट, ठीक है? ये क्या करेगा, हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन होते हैं, क्रिएट, क्रिएट अपडेट, अपडेट, और एक और होता है वैलिडेट। 4 इसमें टाइप हम पास कर सकते हैं। मोस्टली हम यूज़ करते हैं अपडेट व्हेन वी आर डूइंग डेवलपमेंट। जब आप कोड कर रहे हो, लाइव टाइम पर लाइव कोडिंग चल रही है, आपका कोड पुश हो पुल हो रहा है, ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो वी ऑलवेज मेक इट अपडेट। अपडेट में क्या होगा, फर्स्ट टाइम जा रहा है तो क्रिएट करेगा, सेकेंड टाइम जा रहा है तो अपडेट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी डेटा क्रिएटेड है। तो ये पहले चेक करता है, जब भी हम सेशन डॉट सेव चलाते हैं, इट it goes into that configuration and checks what was the configuration. It stands for hibernate to ddl. ddl queries याद है आपको कुछ? हमने पढ़ा था जेपी उसमें, जेडीबीसी में, आपने शायद क्लास अटेंड नहीं करी वो वाली। हाँ देर आर सर, सम, जेडीबीसी वाली नहीं करी थी सर। कर लो। अगर नहीं आता तो इसका मतलब मतलब थोड़ा बताते इसका मतलब नहीं उसको स्किप कर दोगे, चीजें होती है, कुछ नया जरूर सीखोगे क्लास में, है ना? हमेशा होता है। यस, ठीक है सर। तो 4-5 टाइप होते हैं कमांड्स के, एसक्यूएल क्वेरीज के, उसमें से एक टाइप है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाइबरनेट में एक फीचर और यू कैन से प्रॉपर्टी वी हैव एडेड, हाइबरनेट मैपिंग टू डीडीएल कमांड्स, और ऑटो पे लिखा हुआ है अपडेट। तो इसमें क्या होगा, हाइबरनेट कीप्स चेकिंग वेदर वट एवर यू आर गोइंग टू सर्ट इन डेटाबेस इट्स प्रेजेंट और नॉट। इफ इट इज प्रेजेंट, सो इट वोंट क्रिएट एनी एंट्री, इफ इट इज नॉट देयर, दैट इट विल क्रिएट, ठीक है? डेटा होगा तो अपडेट करेगा, डेटा नहीं है तो पहले क्रिएट करेगा, फिर डेटा क्रिएट करेगा। तो लेट्स क्लियर दिस आउट। आई हैव चेंज जस्ट वन एंट्री, पवन, एवरीथिंग रिमेन्स सेम। तो और गुड थिंग इज वी आर मैनेजिंग एवरीथिंग अबाउट द प्राइमरी कीज थ्रू ऑटो जनरेशन। तो यहाँ पे हमें प्राइमरी की भी देना नहीं है, बस एक नया एंट्री करना है मेन टेबल में, क्योंकि हम अल्टीमेटली किस ऑब्जेक्ट को सेव कर रहे हैं, स्टूडेंट। तो व्हाट मैटर्स, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। तो आईडी ऑटो जनरेट हो रहा है, नेम मैंने नया दे दिया, और सब्जेक्ट पुराने वाले आ गए। तो अब इसको रन करते हैं, एक काम करते हैं, 2-3 सब्जेक्ट हटा देते हैं यहाँ से, जैसे कि लेट्स जस्ट मेक इट बैकएंड, कि सिर्फ बैकएंड का डेवलपर है, तो जावा और डेवऑप से काम हो जाएगा, ठीक है? और एक एंट्री कर देता हूँ नया, थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा अपना रिकॉर्ड, और कुछ नहीं, माई एसक्यूएल, और इसको मूव कर देता हूँ ऊपर, ठीक है? तो अब रन करते हैं कोड को, रन एज एप्लीकेशन। आइडली वी शुड नॉट सी एनी कमांड विच इज क्रिएट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑल्टर कमांड चला, एक एंट्री एंटर हुई टेबल पे,
और फिर इंसर्ट चले बस, राइट। ऑल्टर एक्चुअली बाय डिफॉल्ट चलता रहेगा, तो ऑल्टर को इग्नोर करो। पर आइडली 1 एंट्री इन स्टूडेंट टेबल एंड 3 एंट्रीज इन सब्जेक्ट टेबल, है ना, ऐसे ही होना था क्योंकि हमने 3 एंट्री यहाँ डाली है। तो अब डेटाबेस चेक कर लेते हैं, देन वी विल कंक्लूड व्हाट इज हैपेंड हियर। सो सब्जेक्ट टेबल, पहले स्टूडेंट टेबल पे देखते हैं, रिफ्रेश, सो यू कैन सी 1 एंट्री, राइट। जस्ट सेकंड। यस। So you can see we have a record one here, okay, इसकी आईडी क्या है 2। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी सब्जेक्ट की, अब सब्जेक्ट पे जाएंगे तो अभी रिफ्रेश करते हैं इसको, देखो। तो जो तुम्हारी आईडी थी वो थी 1, और सब्जेक्ट में अब थे, नेक्स्ट आईडी मेरी है जिसमें 3 सब्जेक्ट हैं। तो व्हाट वाज हैपनिंग कि हाइबरनेट नोज के दिस टेबल एंड दिस टेबल, both tables are already present in database, so it won't create any new table, but it knows that records are new। so यहाँ पर 2 की एंट्री करी, मेरा नाम लिख दिया, बाकी जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे थे उनकी एंट्री करी, और जो भी सब्जेक्ट थे इनको मैप कर दिया id2 से। id2 इज माइन आईडी। सो ये ऐसे काम करता है। तो व्हाट वी डिड, वी जस्ट डिड अ स्लाइड चेंज, कोड ऑलमोस्ट सेम था, बस हमने एक नया एंट्री करा वहाँ पर, और इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस अपडेट। सो अपडेट को कभी छेड़ना मत, जैसा लिखा है इसको रखे रहने दो वैसे ही। ओके, ओके, then insert, then what else, configuration file is fine, then you need to go in database, student table, now we have 2 entries, and in here we got 2 more entries, student id and subjects। ओके, ddl देख के आना क्या होता है, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, इट्स एक्चुअली डेटाबेस टर्म, बट अगर हम हाइब्रिड पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब आना चाहिए। Okay, this is done, this is our output, and these are from, oh, from database, and student subjects, student table। आई होप ये भी क्लियर होगा शुभम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है तो बताओ। नहीं सर, क्लियर है ये। ठीक है, चलो हमने ये भी क्लियर कर लिया, हम 2 एंट्रीज डाल दी। अब क्या करते हैं, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। CRUD ऑपरेशन पता है क्या होते हैं? यस सर। ठीक है, तो जो हमने अभी जस्ट किया वो कौन सा ऑपरेशन है? अपडेट। अपडेट। और उसके पहले वाला? क्रिएट। 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 ये वाला अपडेट क्यों कहा आपने? ये सर इसमें जो पहला वाला जो था उसको मतलब नया क्रिएट नहीं किया, उसमें अपडेट किया है। वो तो आप टेबल पे टेबल बात कर बनी रहे हैं, हुई हम तो थी। हम तो CRUD ऑपरेशन ऑब्जेक्ट पे करने वाले हैं, टेबल पे थोड़ी CRUD ऑपरेशन करने वाले हैं। थिंक, जो CRUD ऑपरेशन होते हैं वो तो एंटिटी ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म होते हैं, सेम ऑब्जेक्ट पे, कि एक रिकॉर्ड या तो एंटर हुआ, या वही रिकॉर्ड अपडेट हुआ, वही रिकॉर्ड डिलीट हुआ, वही रिकॉर्ड फैच हुआ। बोलो, यहाँ तो आपका रिकॉर्ड छेड़छाड़ नहीं हुआ, जैसे आपकी एंट्री सेम रही। दोनों ऑपरेशन में, चाहे आपकी वाली एंट्री या मेरी एंट्री, दोनों में CRUD ऑपरेशन में सिर्फ क्रिएट वाला इंसर्ट हुआ है। इंसर्ट क्वेरी चली है, कहीं आपने देखा सिलेक्ट चली है या अपडेट या डिलीट? नहीं सर। आप टेबल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, वो आपकी बात ठीक है, टेबल पे देखोगे तो हाँ टेबल में अपडेट हुआ है, दैट्स करेक्ट। बट व्हेन वी से CRUD ऑपरेशंस इन जावा, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वन जावा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो अभी ओके हमने सर। जस्ट किया था पीछे वो थे क्रिएट वाले, दोनों इंसर्ट हुए थे, है ना। वापस दिखा यस देता हूँ, सर। कंफ्यूज हो तो, कि यहाँ पर इंसर्ट है, देखो, क्रिएट इंसर्ट, और अगर सेकंड भी खोलो तो यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट क्वेरीज है, तो डेट मीन्स सी वाला पार्ट क्रिएट हुआ है इस पे। ठीक है, तो ये तो डन यस हो सर। गया। नेक्स्ट लेट्स फैच, ओके, रीड वाला ऑपरेशन, रीड और यू कैन से गेट रिकॉर्ड्स। तो वो कैसे होगा, अगेन इट ऑल दीज CRUD ऑपरेशंस बेस्ड ऑन और डिपेंड्स ऑन सेशन ऑब्जेक्ट, जस्ट सेशन ऑब्जेक्ट। दैट्स व्हाई आई कॉल दिस सेशन एज अ हार्ट ऑफ हाइबरनेट फ्रेमवर्क। अगर आपका सेशन फैक्ट्री है सो दैट्स अ स्केलेटन, बट अगर आप उसको स्केलेटन को रन करना है, जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, स्केलेटन रन करता है बिकॉज ऑफ दैट हर्ट, हर्ट ही सारा कुछ फंक्शनलिटी कर रहा है। सेम वे सेशन है, सेशन अगर आपको मिल गया तो आप सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, बेसिक CRUD ऑपरेशंस, और एडवांस में जो हम एचक्यूएल या क्राइटेरिया के फ्रेमवर्क एपीआई है वो चल सकता है। सो लेट्स डू द वन थिंग, थोड़ा टाइम बचाते हैं, मैं ये 3 ऑपरेशन फिर से परफॉर्म करूंगा।
ये एक्चुअली ऊपर रख सकते हैं हम लोग। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके क्रिएट, तो ये डन हो गया। रीड करने वाले हैं, सो वी नीड टू एक्वायर सेशन ऑब्जेक्ट। सो सेशन डॉट गेट, ठीक है। गेट लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप क्या होगा, एनी गेस? एंटिटी टाइप नहीं सर, तो हमने एंटिटी डाला था बस एनोटेशन में, टाइप का नहीं पता सर। जावा में टाइप क्या होता है? कनेक्टेड है चीज़ें। जावा में टाइप होता है क्लास का नाम। अगर मैं पूछूं ये क्लास कौन सी है, आप कहोगे सीधा कि ये बॉय क्लास है, राइट। यस सर। अभी मैं कहूँ कि ये क्या, ये कौन सी क्लास है, आप क्या कहोगे? क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट। अब मेरी बात ध्यान सुनना। ये ऑब्जेक्ट बनाया है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। अगर अब मैं यस सर। पूछूं व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तब क्या कहोगे आप? इस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है? सर स्टूडेंट। हाँ, इस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है? सर लिस्ट। लिस्ट, कलेक्शन, है ना। तो यस सर। अब मेथड क्या बोल रहा है हमसे, हमको एंटिटी का टाइप पास करना है। अब एंटिटी कौन सी हुई, ये सारी एंटिटीज हैं, बॉय स्टूडेंट। इनका टाइप क्या होगा? ये स्टूडेंट टाइप का है, ये बॉय टाइप का है, ये गर्ल टाइप का है ना। तो यहाँ पर हमें पास करना है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये टाइप हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। और हमें आईडी फेच करनी है 1। हो गया बस। अब बस यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा उसका टाइप स्टूडेंट होगा। डन और खत्म। व्हाट्स नेक्स्ट? आपको बस डेटा फेच करना है, जैसे हम सेट करते हैं ऐसे गेट कर सकते हैं। सो गेट नेम, है ना। हो गया। इसमें CRUD ऑपरेशन बहुत सिंपल है। The only thing is you have to put effort once you are setting up your project of Hibernate. Once you're done with that setup, that basic configuration, after बस उसके बाद आपको बस कोड में methods कॉल करने हैं और आपको ऑपरेशन पता चल जाएगा। So student name is, बस let's see, right click, run as application। आया आपका नाम, है ना। ऑल्टर को यस इग्नोर सर। कर दो, ऑल्टर चलता रहेगा क्योंकि हमारे पास वो अपडेट क्वेरी चली, इसलिए अपडेट अब ऑल्टर मारता रहेगा वो। बट सी, अब हमारे पास सेलेक्ट क्वेरी आई है यहाँ पर। दिस इज रीड ऑपरेशन, फाइन। So यस सर। we have performed insert query. Now we have seen read as well और select query as well. Okay, सिंपल है, इसलिए सा टाइम लगाना हमको। अपडेट, अब अपडेट करते सेम रिकॉर्ड को। तो अपडेट और अपडेट रिकॉर्ड। नाउ आई ऑलरेडी हैव योर ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पर मेरे पास आपका रिकॉर्ड है, आपके स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। मुझे इस रिकॉर्ड को चेंज करना है। नेम में जाके इसका फुल मतलब लेट्स से मुझे कंप्लीट नाम डालना है ना। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है। हाइबरनेट डील्स इन ऑब्जेक्ट्स ओनली। अगर आपने देखा होगा जब हमने सेव करा, सेव पर हमने क्या करा था, ये रहा, हमने ऑब्जेक्ट पास किया था उसका रेफरेंस। जब हमने गेट करा तब भी हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास करा। इसी तरह जब हम अपडेट करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट ही पास करना है। लिखेंगे सेशन अगेन हार्ट ऑफ हाइबरनेट वैल्यू से अपडेट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना है स्टूडेंट का। पर ये तो सेम ऑब्जेक्ट है, इसमें चेंज तो हुआ ही नहीं, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को चेंज कर दूंगा। लिखूंगा स्टूडेंट डॉट सेट नेम। ऐसे नाम है ना आपका, शुभम वाली। यस सर। देखो मैंने अपडेट कर दिया, बस इतना काम करना है, हो गया डन। इफ एवरीथिंग वाज फाइन वी शुड गेट अ अपडेट क्वेरी यहाँ पर। ओके, अपडेट विल व्हाट यू कॉल से, अपडेट क्वेरी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो देखते हैं, रन एज एप्लीकेशन, आपका नाम भी प्रिंट होगा। और इफ एवरीथिंग वाज फाइन वी शुड गेट अ अपडेटेड नेम। पर मैंने प्रिंट तो कराया नहीं, प्रिंट नहीं होगा नाम। ओके, क्या भाई अपने ने दिया। ओके, क्योंकि ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ ना हमने, तो हमें फ्लश करना पड़ेगा, है ना। जितने ऑपरेशन है हमें फ्लश करना जरूरी है क्योंकि चेंजेस नहीं गए वहाँ पर। और एक काम कर लेते हैं, सेशन डॉट क्लोज भी कर लेते हैं, सेशन फैक्ट्री डॉट क्लोज भी कर लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर डेटाबेस पे हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, और जब भी वो करोगे तो बेटर टू फ्लश एंड क्लोज ऑल द कनेक्शंस, वरना पाइप एंड कनेक्शन ओपन रह जाएगी। ओके, अब देखते हैं डेटाबेस। नेम में गए, रिफ्रेश, कुछ कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, प्रिंट नहीं कर रही है। सेशन डॉट अपडेट स्टूडेंट, सेशन डॉट फ्लश,
अपडेट में प्रिंट प्रिंट कर लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि गेट नहीं होना अभी तक, शायद उस डेटा नहीं आ रहा होगा। लेट्स से अपडेटेड record equals, then let's print the same। फ्लैश को लेते हैं सबसे बॉटम पर, एंड अपडेटेड हमको कास्ट करना पड़ेगा। ओहो, ये तो वॉइड देता है। तो काम करते हैं, फिर से गेट करके लाते हैं इसको, इतना काम और करते हैं। लेट्स सी क्या हमारा नाम चेंज हो। अपडेटेड रिकॉर्ड दिस, कॉपी दिस, okay, so we are updating the record, then we are trying to fetch the update student record again to see it's working or not। इसको करते हैं terminate, terminate, remove all, let's run। updated student name is, ओके ये रहा फाइल। कुछ क्या ना पाइपलाइन में स्टक रहती चीज़ें, तो जब हमने गेट करा तो उसने पाइपलाइन को ट्रिगर करा होगा, और जो भी रिकॉर्ड बीच में फंस गया वो चला गया। तो यहाँ पे क्या लिखा था, अपडेटेड। तो यहाँ पे लिखा गया अपडेटेड स्टूडेंट नेम इज बाली, शुभम बाली। और डेटाबेस चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश। ओहो, सर्वर गॉन अवे, दैट्स व्हाई इट हैपेंड। सी, सर्वर चला गया इसका, पता नहीं कैसे। चलो फिर से ट्राई करते हैं। ओके, सो योर नेम इज अपडेटेड, सो दैट्स हाउ वी update the record, just by calling update method of session factory, sorry session interface। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट, डिलीट, लास्ट वन। सो यहाँ पर करते हैं डिलीट, डिलीट रिकॉर्ड। ओके, एक एंट्री मैनुअली कर देता हूँ मैं। अप्लाई, अप्लाई, फिनिश। सो वी हैव ना 3 रिकॉर्ड्स एंड आई वांट टू रिकॉर्ड दिस थर्ड रिकॉर्ड। तो करना क्या है, सेशन डॉट डिलीट। इफ यू नोटिस अगेन इट नीड्स ऑब्जेक्ट, तो मुझे एक नया ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का क्रिएट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट डिलीटेड, डिलीट स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे मुझे आईडी देनी पड़ेगी, कौन सा रिकॉर्ड मैं एंटर करना चाह रहा हूँ, डिलीट करना चाह रहा हूँ। आईडी इज मस्ट, बिकॉज इट्स अ प्राइमरी की। तो सेट आईडी 1, नॉट 1, थर्ड, और ये स्टूडेंट जो डिलीट वाला ऑब्जेक्ट है यहाँ पास कर देंगे। डन। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, डिलीट द रिकॉर्ड। सो डिलीट मांगता है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, सो वी हैव डन दैट, एंड मेक श्योर यू आर पासिंग आईडी। प्राइमरी की के बिना तो पास ही नहीं होगा। तो इवन इफ यू नोटिस, जब ये क्वेरी चलेगी, सो यू विल गेट a query which says delete this record where id equals to question mark, that is a placeholder। ओके, और फ्लश लास्ट में चल ही रहा है तो सब कुछ क्लियर कर देगा। रन एज एप्लीकेशन, देखते क्या आता है। ये रहा, ठीक है। तो इसने ट्राई करा, क्योंकि मैपिंग है तो इसने ट्राई करा क्या एंट्रीज सब्जेक्ट के अंदर है, अगर होगा तो वो भी डिलीट कर देगा, और प्लस डिलीट स्टूडेंट फ्रॉम वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस। तो मैंने जानबूझ के सिर्फ एक ही एंट्री करी, दिखाने के लिए कि अगर हम स्टूडेंट में एंट्री करते हैं और सब्जेक्ट में एंट्री ना हो तो भी रिकॉर्ड हो सकता है डिलीट। सो व्हाट एल्स वी कैन डू, सो व्हाट एल्स, सो ऐसे काम करता है यहाँ पर, रिकॉर्ड ऐसे क्लियर हो जाते हैं आपसे। और इफ आई रिफ्रेश दिस पेज, सो यू कैन सी रिकॉर्ड इज गॉन, राइट शुभम, सिंपल। यस सर। तो these are known as CRUD operations। So Hibernate takes care of all the mappings। मैंने क्या करा, सिर्फ एक टेबल में एंट्री की थी, and this ID is actually mapped with subject as well। So what does it do, it checks whether we have record entry or not। So पहले इसकी child class उसका record entry करेगा, delete करेगा अगर है तो, और फिर जो main table है स्टूडेंट जिससे मैपिंग जा रही है उसको डिलीट कर देगा। एंड इट मेक श्योर दैट यू आर, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर पासिंग आईडी, क्योंकि ये इसी बेस पर रिकॉर्ड को डिलीट करता है। दैट्स व्हाई हाइबरनेट नीड्स प्राइमरी की। थिंक अबाउट, अगर प्राइमरी की पास नहीं है तो किस बेस पर रिकॉर्ड को अपडेट या डिलीट करेगा, है ना। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज पास प्राइमरी की। ये मैंडेटरी है हाइबरनेट में कि इफ यू आर क्रिएटिंग एनी टेबल थ्रू एंटिटी क्लास, मेक श्योर यू आर पासिंग प्राइमरी कीज एज वेल। सो दैट्स इट अबाउट CRUD ऑपरेशंस। तो चार ऑपरेशन समझ में आ गए। सी, इट्स ऑल अबाउट मेथड्स। अगर आपको मेथड्स पता है तो इजीली परफॉर्म कर लोगे, और इट्स ऑल प्रेजेंट, ऑल दिस मेथड्स आर प्रेजेंट इनसाइड
सेशन ऑब्जेक्ट, सो सेशन में अगर पड़ा होगा ऑब्जेक्ट तो आराम से आप चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो और रन कर सकते हो। तो इतना परफॉर्म कर लीजिए, अभी आपको सर्वलेट का टॉपिक ही बाकी है तो वो भी कर लीजिए, प्लस ये जो किया है मैंने इसको भी थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा कि हाउ इट वर्क्स, CRUD ऑपरेशंस प्लस हम लोग कलेक्शन कैसे सेव करते हैं हाइबरनेट में, राइट? यस सर, ठीक है सर। ठीक है, तो अभी इसमें और भी चीज़ें हैं, मतलब चीज़ें तो बहुत सारी हैं, तो वो आगे हम कवर करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट में कि हम अगर एसक्यूएल क्वेरी लिखें तो कैसे पास होगा वो, राइट? वी इफ वी हैव टू पास एसक्यूएल क्वेरीज, सो यूटीपी यूटी, ओके, सो डन। ओके शुभम, एनी डाउट और क्वेश्चन कुछ भी और? नहीं सर, क्लियर है सर आज का सारा क्लियर अभी। है, चलो ठीक है। सो वी लर्न टू थिंग्स, हाउ टू सेव कलेक्शन इन हाइबरनेट एंड हाउ टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशन, राइट? तो इतना कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो और भी चीज़ें हाइब्रिड में उसको कवर करेंगे, फाइन। ओके सर।